Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. So this is the part 2 of the General Science 200 plus best MCQs for your upcoming female supervisor exam. In this part second of this series, we will again solve a mixed bag of questions from the General Science part of your syllabus. Let's move towards the first question. Okay, so first few questions they will be from the diseases part of your syllabus. First question says the administration of BCG vaccine gives a considerable protection against the following diseases. And the correct option is option A, that's tuberculosis. Okay. Speaking of the disease of tuberculosis, it is a bacterial disease caused by Mycobacterium, right? Mycobacterium tuberculosis, right? This bacteria or bacterium जो है, it causes the infection of lungs because it produces a toxin जिसका नाम है tuberculin. So tuberculin is the toxin which is produced by Mycobacterium tuberculosis, which causes tuberculosis, and इसमें क्या होता है, infection of lungs हो जाता है. Infection of lungs is contracted and also it causes high fever. That is, people suffering from tuberculosis often have this symptom of high fever and infection of the lungs. And this BCG vaccine जो है, it gives a considerable protection against the tuberculosis, ठीक है, which is also commonly called as TB. ठीक. Speaking of, for example, cholera, it is again caused by a bacteria, Vibrio coma, which was discovered by Robert Koch, and it's also transmitted through contaminated food and water. So cholera की अगर हम बात करें तो it is caused by Vibrio coma. ठीक. Speaking of leprosy, it is also caused by a bacterium known as Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. And speaking of, for example, plague, it is caused by Yersinia pestis. ठीक. Next question. Question is, which of the following is a false statement? हमें देखना है regarding diphtheria. Diphtheria जो है ये एक डिसीज़ है, लेकिन हमें ढूंढना है इनमें से कौन सा इसके बारे में false statement है. Statement 1 is it's caused by Corynebacterium diphtheriae. This is a true statement because यही इसका causative agent, इसकी वजह से ये disease हो जाती है. It is an acute infection of the respiratory tract. It's a false statement क्योंकि diphtheria जो है it is also as mentioned caused by the bacterium, but it's not an acute infection of the urinary tract because it is the infection of the respiratory tract. Okay, तो हमें false ही देखना था. It means जो option C है, DPT vaccine is administered to the babies within first 6 of their birth and it gives them protection against the diphtheria. ठीक है. And option D is it's a bacterial disease. This is again a true statement क्योंकि it's caused by Corynebacterium. तो नाम में ही उसके पता चलता है कि बैक्टीरिया कॉज करता है. हमें बताना था फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाएगा क्योंकि it's a disease of respiratory tract. It's not that of the urinary tract. Next question. Question is, which of the following is true statement about leprosy? ठीक है. Statement A is it is also called as Hansen's disease. This is a true statement. This is a true statement. Speaking of the statement second says it is caused by Mycobacterium leprae. This is again a true statement. It is a chronic infection of the skin leading to deformities. This is again a true statement. For example, deformities in case of fingers. ठीक है. Option D is all of these. So option D is the correct option. Therefore, all of these जो है वो करेक्ट है, वो सारे ट्रू, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स लेप्रोसी के बारे में ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज
Poliomyelitis is the disease of the CNS, which stands for central nervous system, causing muscle atrophy in arms and legs. It is caused by dash, and the correct option is option C, that is enterovirus. ठीक है, पोलियोमाइलिटिस जो है इसको हम कॉमनली पोलियो कहते हैं. ठीक है, इट्स डिजीज ऑफ CNS, विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस system, all right, which consists of the brain and the spinal cord. ठीक, जिसमें मसल एट्रोपी हो जाती है इन आर्म्स एंड लेग्स. देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाए. एंड स्पीकिंग ऑफ द ऑप्शंस, जो ऑप्शन ए है दैट इज जॉन साल्क. ही वाज द person behind the development of the polio vaccine in 1953. जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन को 1953 में डेवलप किया. एंड स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज एल्बर्ट सैबिन. हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू पोलियोमाइलिटिस? इसने ऑरल पोलियो वैक्सीन डेवलप किया. ठीक है, दैट इज ऑरल पोलियो वैक्सीन that was developed by Albert Sabin. Next question. Question is, which of these is the aftermath of contracting rabies? जब किसी बंदे को, किसी इंसान को रेबीज़ हो जाता है तो उसमें रेबीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? नंबर 1 इज़ हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर. फियर ऑफ वाटर. ऑप्शन बी इज़ एनसेफेलाइट्स, विच मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन. Inflammation of brain. Option C says both A and B. Option D says only B, and the correct option is option C, that is both A and B. ठीक है, जिन इंसानों को रेबीज़ कंट्रैक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं कोई पागल कुत्ता काटता है किसी को, वो यही होता है क्योंकि दैट पर्सन जो है दैट मे कॉन्ट्रैक्ट रेबीज़. एंड उसके बाद उस बंदे को हाइड्रोफोबिया हो सकता है, दैट्स फियर ऑफ वाटर हो सकता है, एंड एनसेफेलाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन. ठीक, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू आफ्टरमेथ और सिम्टम्स, जिन लोगों को रेबीज कॉन्ट्रैक्ट होता है दे ऑल्सो हैव हाई फीवर, सीवियर हेडेक, ऑलराइट, थ्रोट स्पाज्म्स, स्पाज्म्स, जैसे थ्रोट में वो मरोड़ जैसी लगेगी, यानी एक चोकिंग फीलिंग उनको आती है. चोकिंग फीलिंग उनको आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स कॉजिंग स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन इज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज गाउट. ठीक है, जिन लोगों को जॉइंट्स में यूरिक एसिड फॉर्मेशन के बाद वो क्रिस्टल्स जो है वो उनको नॉर्मली उनके किडनीज़ के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं, लेकिन इन सर्टन केसेस जब एक डिसफंक्शनैलिटी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो ऐसे लोगों के जॉइंट्स में यू कैन से एक्यूमुलेट हो जाते हैं. इट इवेंचुअली लीड्स टू गाउट. ठीक है, जब आपको जॉइंट्स में बहुत स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होता है. ठीक है, सो इसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है. ठीक है, इसमें बेसिकली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनमें ही ये फिलअप हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे कॉज इमेंस पेन इन दीज जॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द vitamins of part of your syllabus. So question says, which of these vitamins is linked with the absorption of calcium and phosphorus in the intestines? ठीक है, and the correct option is option D. ठीक है, दैट सॉरी ऑप्शन सी, विच इज़ विटामिन डी. विटामिन डी जो है, जो हम अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं या जो हमारी बॉडी में फॉर्म हो जाता है विटामिन डी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जो हम कैल्शियम और फॉस्फोरस कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड, उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए विटामिन डी एसेंशियल होता है हमारी बॉडी में. ठीक, देयरफॉर वी कैन से कि विटामिन डी जो है इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड phosphorus absorption in our body. ठीक, speaking of option A, that is vitamin K, which I have mentioned already, कि it is associated with blood clotting. ठीक है,
Speaking of option B, that is vitamin E, it is associated with sterility. Okay, this is also called as tocopherol. Next question. Question is, which of these is true about vitamin C? ठीक, option A says it is deficiency leads to scurvy. This is a true statement, and this deficiency of scurvy जो होती है because of vitamin C deficiency, it's also known as sailor sickness. All right, and in this particular case जो ब्लड वेसल्स होती हैं अराउंड द गम्स एट्सेट्रा, माउथ या गम्स के अराउंड, दे बिकम वेरी फ्रेजाइल एंड स्पॉन्जी, एंड एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग ऑफ गम्स इनमें हो जाता है. ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाता है. Speaking of option second, that says oranges and lemons are rich in vitamin C. This is a true statement because vitamin C जो है इसका जो you can say सबसे अच्छा सोर्स है दैट इज सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, या जो सिट्रस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो रिच इन विटामिन सी होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं. देयरफॉर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं अबाउट विटामिन सी. दे आर द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन सी, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड लीड्स टू. इनमें से जब एक इंडिविजुअल को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस इंडिविजुअल में क्या डेफिशिएंसी या क्या डिसीज हो जाती है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज मेगाब्लास्टिक एनीमिया. सॉरी, इट्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नॉट मेगाब्लास्टिक. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है बेसिकली, इसमें जो आरबीसीज होती हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, आरबीसीज दे आर द रेड ब्लड सेल्स. ऑल राइट, इनका दे आर लार्ज इन साइज वगैरह इनका ठीक होता है, लेकिन इसमें लो आरबीसी काउंट होता है. ठीक है, individual suffering from a persistent low RBC count, it is because of the deficiency of folic acid, और जिसे हम आयरन डिफिशिएंसी के नाम से भी कॉमनली जानते हैं, आयरन डिफिशिएंसी. ठीक है, सो इट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द डिसीज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अ टाइप ऑफ एनीमिया बेसिकली. स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन ए, बेरीबेरी, यू नो दिस बेरीबेरी जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. Speaking of option B, pellagra, and this pellagra जो है it is associated with the deficiency of vitamin B3 या vitamin B3. ठीक है, इसी डिजीज़ को हमने शायद लास्ट क्लास में देखा था, इसको हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन सी, दैट इज ज़ेरेप्थेलमिया, इसमें क्या है कि जो कंजक्टिवा होता है उसका केरेटनाइजेशन होता है, वो बहुत यू कैन सी ड्राइनेस ऑफ आइज हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा हो जाता है. ठीक है, तो इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो जाता है. इट्स लिंक्ड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज लिंक्ड विद एंटी स्टेरिलिटी कंडीशन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ई. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. विटामिन ई जो है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टोकोफेरॉल. तो इसमें क्या है कि जो स्टेरिलिटी है वो रिवर्स हो जाती है. तो स्टेरिलिटी जो है ये वाली स्टेरिलिटी, इसमें रिवर्स स्टेरिलिटी हो जाती है. उसका क्या मतलब है, इन केस ऑफ फीमेल्स, इन फीमेल्स, तो द फीमेल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम अ persistent deficiency of vitamin E, they are characterized by normal ovulation, fertilization and implantation. लेकिन जो फीटस डेवलप हो जाता है उनके वूम्ब में, वो रीअब्जॉर्ब होता है इन द यूट्रस आफ्टर सम टाइम. ठीक है, और मेल्स में इट कॉजेज एट्रोपी, ठीक है, ऑफ सुपरमैटोजेनिक ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, एंड इट सो इवेंचुअली इट कॉजेज स्टेरिलिटी. ठीक है, इसीलिए स्टेरिलिटी के यू कैन से कंडीशन को ठीक करने के लिए विटामिन ई का कंज्यूम करना बड़ा सही है. ठीक है, सो आई विल ऐड दीज पॉइंट्स. फीमेल्स में ओव्यूलेशन जो है नॉर्मल होता है, इम्प्लांटेशन भी नॉर्मल होता है, यानी बेबी जब यूट्रस के साथ जुड़ जाता है, इम्प्लांट वहाँ पे हो जाता है.
लेकिन फीटस डेवलपमेंट नहीं होती है प्रॉपर। और इन केस ऑफ मेल्स इट कॉजेज एट्रोपी ऑफ टेस्टिस और एट्रोपी इन टेस्टिस, ठीक है, जिसकी वजह से विच इवेंचुअली कॉजेज स्टेरिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच, हमें बताना है। फर्स्ट जो है दैट इज विटामिन B12 इज लिंक्ड टू सायानोकोबालामिन, दिस इज अ करेक्ट मैच। विटामिन B7 जो है इट इज लिंक्ड टू बायोटिन, दिस इज अ सही लिंकेज। विटामिन B2 जो है इट इज लिंक टू राइबोफ्लेविन, दिस इज अ ट्रू लिंकेज बिकॉज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। विटामिन B7 is also called biotin. Vitamin B12 is also called cyanocobalamin. Speaking of option D, that says vitamin C is to retinol. This is an incorrect match because vitamin C जो है इसका दूसरा नाम है ascorbic acid. And speaking of retinol, तो retinol is linked to vitamin A. Therefore हमें बोलना था incorrect match, इसलिए option D यहाँ पे incorrect match आएगा। Next question. Alright, now we will be solving questions from the ecology and biodiversity part of the syllabus. So first question says, which of these relationships involves the benefit of both the species involved? सी ये जो गिवन ऑप्शंस हैं प्रेडेशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस इंटर यू कैन से स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस। ठीक है, जब हम इकोलॉजी में देखते हैं कि अपने आसपास देखते हैं देयर आर वेरियस लिविंग स्पीशीज़ विच आर को डिपेंडेंट ऑन ईच अदर मोस्ट ऑफ देम, और वो एक इंटीग्रेटेड फैशन में काम करते हैं सो दैट वो इस किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं या इंट्रैक्शंस हैं, ये रिलेशंस इंटरस्पेसिफिक हैं, दैट इज़ बिटवीन टू और मोर स्पीशीज इन्वॉल्व। ठीक है, एंड दीज इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर स्पीशीज इन्वॉल्व, ठीक है, दे अराइज फ्रॉम their interaction within an ecosystem. ठीक है, within an ecosystem. ठीक है, now speaking of option A that is predation. predation जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो एक स्पीशीज़ होती है वो होता है प्रेडेटर, यानी जो शिकार करता है, और जिसका वो शिकार करता है दैट इज़ नोन एज प्रे। ठीक है, दैट मीन्स प्रेडेटर जो है जब वो किसी का शिकार एज अ प्रे उसका शिकार करता है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदे में होता है तो उसको प्लस दिखाएंगे। लेकिन जिसका शिकार होता है विच इज़ प्रे, उसका नुकसान हो जाता है तो उसको माइनस में दिखाएंगे। तो अब दोनों चीज़ें हमें बोलना है बेनिफिट ऑफ बोथ, दैट मीन्स दोनों रिलेशंस, दोनों जो स्पीशीज़ इन्वॉल्व होंगे उनके लिए प्लस और प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम प्लस और माइनस देख रहे हैं प्रेडेशन के केस में। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो सही नहीं है इसका आंसर। ठीक है, सो प्रेडेशन को मैं डिनोट करूँगी प्लस और माइनस से। ठीक, स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन बी विच इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म दो स्पीशीज़ के बीच का एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें एक का फ़ायदा होता है लेकिन जो दूसरा है उसका ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ज़ीरो से। तो प्लस और ज़ीरो वाली रिलेशन जो है वो कमेंसलिज्म में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें प्लस और प्लस ढूंढना है, दैट मीन्स ऑप्शन बी भी सही नहीं है। स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन सी विच इज़ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म जो है इट इज़ वेरी सिमिलर लाइन्स टू दैट ऑफ प्रेडेशन। जैसे प्रेडेशन में एक का फ़ायदा है एक का नुकसान है, वैसे ही पैरासिटिज्म में एक का नुकसान है और एक का फ़ायदा है। फ़ायदे को प्लस से डिनोट करते हैं, नुकसान को माइनस से डिनोट करते हैं। अब स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन डी विच इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऐसा रिश्ता है जिनमें दोनों स्पीशीज़ जो है उनका फ़ायदा होता है। ठीक है, दैट इज़ बोथ द स्पीशीज़ इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप दे बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। सो इसमें प्लस और प्लस रिलेशनशिप है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वही हमें ढूंढना था। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मे बी आपके दिमाग में राइज होगा कि अगर दोनों का नुकसान होता है
ठीक है, जिसमें अगर माइनस और माइनस रिलेशनशिप है, तो माइनस और माइनस रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कंपटीशन या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जिसमें माइनस और माइनस हो, यहाँ पे रखूँ माइनस और माइनस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, so the question is the breakdown of detritus into smaller particles is carried out by, and the correct option is option C, that is detrivores. तो detrivores ऐसे लिविंग स्पीशीज होते हैं जो detritus का ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये detritus क्या होता है? दिस इज द डेड प्लांट रिमेन्स। फॉर एग्जाम्पल जो डेड मैटर होता है, डेड मैटर और जो डेड रिमेन्स होते हैं of, for example, plants, which include, for example, इसमें leaves आएंगे, ठीक है। इसी तरह for example flowers जो गिरे होते हैं, ठीक है, and also the dead remains of animals, ठीक है, including the feces, ठीक है, including the fecal matter or feces, sorry, including। तो ऐसे लिविंग स्पीशीज जो इस डेड मैटर एंड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, दैट इज नोन एज, दोज एनिमल्स और दोज स्पीशीज आर नोन एज डेट्रीवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्पीकिंग ऑफ ऑप्शन ए, हर्बिवोर्स ऐसी लिविंग स्पीशीज होती हैं जो कि प्लांट्स पे फीड करती हैं, ठीक है, दे फीड ऑन प्लांट्स। एंड स्पीकिंग ऑफ कार्निवोर्स, दे फीड ऑन एनिमल्स, ठीक। Next question. All right, question is goat occupies dash trophic level in a simple grazing food chain GFC, ठीक है, and the correct option is option B, that is primary consumer। अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल जो कंज्यूमर्स, या पर्टिकुलरली अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें, इसमें ग्रास जो होता है दैट इज़ द प्रोड्यूसर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ग्रास जो है दैट इज़ प्रोड्यूसर बिकॉज दैट इज़ द सोर्स ऑफ फूड, ठीक। और ग्रास जो है इसको खाता है फॉर एग्जाम्पल गोट। सो गोट जो है इट फीड्स ऑन द ग्रास, सो इट बिकम्स अ कंज्यूमर बट प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड करता है। तो गोट को डायरेक्टली, घास को डायरेक्टली गोट खाता है, ठीक है। सो इट्स द प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इन टर्न इस गोट को जो खाने वाला लिविंग स्पीशीज है दैट मे बी फॉर एग्जाम्पल मैन, जैसे कि हम गोट मीट कंज्यूम करते हैं तो हम भी कंज्यूमर हुए, लेकिन हम प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं तो हम बने सेकेंडरी कंज्यूमर। हमारा सवाल हमें पूछ रहा था गोट का क्या ट्रॉफिक लेवल है। ये जो लेवल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, तो दे आर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, और गोट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is the natural interlocking pattern of various food chains is known as, and the correct option is option D, that is food web, ठीक है, इसको हम कहते हैं food web। As you know, food chain अभी हमने बात करी, grazing food chain एक food chain type है। इसी तरह for example another is detrivorous food chain, ठीक है, जहाँ पे डेट्रिटस जो है वहाँ से फूड चेन स्टार्ट हो जाती है, यानी वो लिविंग स्पीशीज़ यानी डेट्रीवोर्स जो हैं वो उस डेट्रिटस पे फीड ऑन करते हैं, दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ फूड चेन। अब ये जो फूड चेन्स है ना, ये आपस में दे फॉर्म एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, ये एक दूसरे के साथ दे कोइंसाइड विद ईच अदर। या फॉर एग्जाम्पल जो मेम्बर्स ऑफ वन फूड चेन है, हियर यू कैन से जो मेम्बर्स ऑफ फूड चेन्स हैं they coincide with each other and eventually ये जो interlocking pattern है इन food chains का, this is known as food web, ठीक। next question is which of the following has the largest population in a food chain, and the correct option is
ऑप्शन ए दैट इज़ प्रोड्यूसर्स। किसी भी फूड चेन में जो ज़्यादा पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, ठीक है, इन अ जनरल केस वी आर सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रोड्यूसर्स मैंने एक्सप्लेन करा, ये वो लिविंग स्पीशीज़ होती हैं एक ट्रॉफिक लेवल में, ये वो पहली ट्रॉफिक लेवल होती है, ठीक है, जहाँ पे जो कि फूड को क्रिएट करते हैं, फूड को बनाते हैं, ठीक, प्रोड्यूस करते हैं फूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ट्रांसफर across the trophic levels is governed by dash and the correct option is option D, that is 10% law। इसका क्या मतलब है? As I explained in the previous questions कि we have different trophic levels in a food chain, ठीक है, किसी भी food chain में we see a number of trophic levels। अब ये trophic levels क्या हैं? They may be for example producers, ठीक है, then they may be primary consumers, then they may be for example secondary consumers, they may be tertiary consumers। नाउ ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इट्स गवर्न बाय 10% लॉ। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास हम मानते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे वो फूड है, बिकॉज फूड इज़ ऑल्सो एनर्जी, वो हम 100% मानते हैं। And on going from one trophic level to another, 10% लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पे ट्रांसफ़र हो जाता है। दैट मीन्स ओनली 10% ऑफ 100% विल बी एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड टू प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स की होगी उसका सिर्फ 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट 10% लॉ मीन्स। नेक्स्ट Question is which of these is also called as terror of Bengal, and the correct option is option A, that is water hyacinth, ठीक है। water hyacinth जो है इसको terror of Bengal कहा जाता है because it is considered to be the world's most problematic weed और aquatic weed, ठीक है, बिकॉज ये मॉव कलर्ड फ्लावर्स होते हैं विच आर फाउंड ऑन अ वेरी अपीलिंग शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडीज़। ये आपको फ्लावर्ड होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर बॉडीज़ में, लेकिन वंस दीज प्लांट्स जो हैं दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड देयर वाटर बॉडीज़ फॉर देयर लवली फ्लावर्स, लेकिन सिंस देन दे हैव कॉज्ड हैवक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ एंड बाय कॉजिंग ब्लॉक्स इन द वाटरवेज, ठीक है। इनका जो ग्रोथ है या इनका जो बढ़ने का यू कैन से स्पीड है, रेट है, वो बहुत ज़्यादा है एंड एज अ रिज़ल्ट ये वाटर बॉडीज़ में हैवक क्रिएट करते हैं, ठीक है, बिकॉज एज यू नो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक बियॉन्ड एक चीज़ के ये फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट लाइक DDT at successive trophic levels is known as, and the correct option is option B, that is biomagnification, ठीक है। See, as you know कि जो toxicants like DDT है and other few जो toxic substances हैं which are often present in the industrial waste waters, they have the tendency for biomagnification, ठीक है। in case of for example ये ज़्यादातर आपको aquatic food chains में देखने को मिलता है, see, ठीक है, aquatic food chains में। What does अब बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या है कि ये जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं जैसे DDT, ठीक है, ये टॉक्सिकेंट्स जब हम फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स को क्रॉस करते हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर्स से हम जाते हैं कंज्यूमर्स की ओर। कंज्यूमर्स दे आर अगेन primaries, they may be or not always, they may be primary, they may be secondary, they may be tertiary। तो for example अगर हम aquatic food chain की बात करें, so you have the water। अब इस वाटर का सपोज कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के साथ कुछ कनेक्शन है, कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो इस वाटर में आ जाता है, सो सपोज DDT, ठीक। उसके बाद इस वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के तौर पे, दे आर फॉर एग्जांपल प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। जू प्लैंक्टन से फॉर एग्जांपल जो स्मॉल फिश होती है वो इस जू प्लैंक्टन को खाते हैं, स्मॉल फिश।
स्मॉल फिश को कंज्यूम करते हैं लार्ज फिश, ठीक है, एंड लार्ज फिश जो है दे आर कंज्यूम्ड बाय द फिश ईटिंग बर्ड्स। तो एक टिपिकल एक्वाटिक फूड चेन में ये प्रोसेस रहता है, ये नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स रहता है, या टाइप ऑफ या जो स्पीशीज इन्वॉल्व है ट्रॉफिक लेवल्स में। नाउ ऑन गोइंग फ्रॉम वाटर टू जू प्लैंकटन, देन जू प्लैंकटन टू स्मॉल फिश एट्सेट्रा, ये जो DDT टॉक्सिकेंट्स लाइक DDT है इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, and that is known as biomagnification. And speaking of, for example, option C, eutrophication, it is the natural, कभी आपसे अगर पूछा जाए, aging of a lake by nutrient enrichment of its water. Okay, next question. Question is, carbon dioxide and methane are the examples of dash gases, and the correct option is option C, that is greenhouse gases, ठीक है, GHGs, greenhouse gases, that is they are the gases which are responsible for greenhouse effect, and this greenhouse effect eventually is responsible for ग्लोबल वार्मिंग। एंड ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ केमिकली CO2 एंड मीथेन विच इज़ केमिकली CH4, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और दैट मीन्स इनकी कॉन्सेंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो इवेंचुअली इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है, एंड विच इवेंचुअली रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो बढ़ जाता है। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट question is, the presence of ozone layer occurs in dash of the atmosphere, and the correct option is option D, that is stratosphere. Ozone layer, ozone जो है इसमें present होती है O3, that is ozone gas, ठीक है, which prevents from the harmful sunlight, harmful sun rays, ठीक है, and जैसे UVA, UVB, that is ultraviolet rays, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है इस ओजोन लेयर से, ठीक है, एंड दिस ओजोन लेयर जो इट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस इज लिंक्ड टू द कंट्रोल ऑफ emission of ozone depleting substances, sometimes they are mentioned as ODS, that is ozone depleting substances, and the correct option is option C, that is Montreal Protocol, जो कि 1987 में कनाडा में साइन किया गया था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट नेशन जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, उनको इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे कंट्रोल के लिए सॉर्ट ऑफ एक मेजर्स लिए गए थे, और एम्फेसिस किया गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है, दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। स्पीकिंग ऑफ अदर ऑप्शंस, कोयोटो एंड पेरिस, दे आर मोस्टली रिलेटेड विद द क्लाइमेटिक चेंज। ठीक, सपोज कोयोटो में अगर हम देखें, इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं बल्कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का उस पर एम्फेसिस किया गया था, ठीक है। So this was the last question of this particular series. With this we cover the series, this particular lecture. See you some other time.